الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، بزم قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اسباب نزول سے متعلق چند اہم پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسباب نزول کا معنی کیا ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، ساتھ ہی ہم کیسے اسباب نزول کو جان سکتے ہیں، اس سلسلے میں بعض مثالوں پہ بھی انشاءاللہ ہم غور و فکر کی نگاہ ڈالیں گے اور اس پوری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے جو آیتیں اتاری، ان آیتوں کی دو طرح کی کیفیتیں رہی ہیں۔ ایک، جب حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جو ضرورت تھی اس کے مطابق آیتیں اتاریں، ان کے پیچھے بظاہر باضابطہ کوئی واقعہ ایسا نہ رہا جس کو سبب قرار دیا جائے۔ زیادہ تر آیتیں قرآن حکیم کی اسی قبیل کی ہیں کہ حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، ان آیتوں کے پیچھے باضابطہ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ دوسری وہ آیتیں کہ کوئی صورتحال پیدا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا یا کوئی صورتحال ایسی پیدا ہوئی، کوئی سبب ہوا، کوئی واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے کی روشنی میں اس سلسلے میں وضاحت دینے کے لیے، اس سلسلے میں ہدایت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاریں، تو ان آیتوں کے اسباب ہوئے، اور ان اسباب کو جاننے سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں ہی دراصل اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ گویا وہ آیتیں جن کے نازل ہونے کے پیچھے باضابطہ کوئی سبب ہو، کوئی واقعہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس کے جواب میں آیتیں اتری ہوں، انہیں اسباب نزول کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیتیں اتری ان کا کوئی نہ کوئی سبب، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ تھا۔ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ کسی آیت کے نزول کا کوئی سبب ہے یا نہیں ہے، یا کیا اسباب تھے جن کی بنیاد پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں؟ اس سلسلے میں علامہ واحدی رحمہ اللہ، امام واحدی رحمہ اللہ بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آیت کے سبب نزول کے جاننے کا واحد ذریعہ نقل ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کوئی واقعہ نقل کیا ہو، بتایا ہو کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ جب یہ واقعہ ہم تک اس طریقے سے آئے تب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس واقعے کے تناظر میں یا اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ہمارے پاس کسی بھی آیت کے نزول کے سبب کو جاننے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس سبب نزول کے سلسلے میں باضابطہ کوئی حدیث، کوئی اثر، کوئی نقل ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پہنچے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ جب ہم اسباب نزول کو جانتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس سلسلے میں باضابطہ دھیان دیا، انہوں نے اپنی توجہ صرف کی اور کوششیں کی کہ وہ آیتوں کے اسباب نزول کو جان سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا عالم این انزلت ولا انزلت آیت من کتاب اللہ الا انا عالم فیما انزلت ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تب تبلغہ الابل لرکبت الیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ صورت کہاں نازل ہوئی، کوئی آیت ایسی نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کس کے سلسلے میں
नाजिल हुई है। और अगर रुए ज़मीन पर कोई ऐसा आदमी हो जो किताबुल्लाह के सिलसिले में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, मुझसे ज़्यादा इल्म रखता हो और वहाँ तक ऊँट की सवारी करके पहुँचा जा सकता है, मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा, उनके पास जाऊँगा और उनसे हासिल करूँगा। इससे पता चलता है कि हज़राते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन असबाबे नुज़ूल को जानने की कोशिश करते थे, कुरान करीम के इस इल्म से बहरामंद होकर फ़ायदा उठाते थे और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो कुरान करीम को सही तरीके से समझने में हमें मदद मिलती है। चुनांचे जब हमें शान नुज़ूल का पता चलता है तो ये समझ में आता है कि इस आयत का सही तनाजुर क्या है, यह आयत क्यों नाजिल हुई थी, इसके पीछे सबब क्या था। जब ये सबब और तनाजुर पता चल जाए तो हम आयत का मफ़हूम मुतय्यन करने में भी आसानी महसूस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसु अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिबा अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युथब्बिता बिहिल अक़दाम। अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत में वयुथब्बिता बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे पाँव अल्लाह तबारक व तआला जमा दे, ये जो बात कही गई है, अगर ये सूरत हाल सामने न हो कि ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बद्र के सिलसिले में नाजिल फरमाई है, तो आम तौर से जहन ये जाता है कि इसका मतलब सब्र व इस्तिक़लाल का है। जबकि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने पाँव जमा देने ही के लिए ये बात कही थी, क्योंकि वो रेत पे चल रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पाँव जमा दिए, वो धंसे नहीं, वो बरकरार रहे और चलते रहे। जब ये तनाजुर, ये सबब हमें पता होता है तो आयत का सही मफहूम हमें पता चलता है। इसी तरह जिन हालात में आयत नाजिल हुई है उन हालात से हम अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, हम समझ पाते हैं कि हालात क्या थे, उनकी सही तस्वीर कशी होती है और उनसे जो माना व मफहूम कशीद होता है वो माना व मफहूम अच्छी तरह हमारे जहनों में बैठता है और हम आयतों को उस तनाजुर में देखने की सकत हासिल कर लेते हैं। ये फ़ायदा हमें अच्छी तरह हासिल होता है। इसी तरह शरीयत साजी की हैरत अंगेज़ मिसालें उजागर होती हैं, हिकमतें उजागर होती हैं। हम उन हिकमतों से वाकिफ़ होते हैं जब हमें पता चलता है कि इस आयत के पीछे सबब क्या है। अब जब कोई वाक़या रूनमा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आयत उतारी तो उससे ईमान वालों के ईमान में इजाफ़ा होता है, बंदा अमल करने के मामले में और ज़्यादा हरीस हो जाता है और वो जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के पीछे मसलहतें हैं, हिकमतें हैं, और उन हिकमतों से इंसानी ज़िंदगी में और ज़्यादा यकीन बढ़ता चला जाता है। जो उलमा हैं हमारे, वो भी इन कैफियत को सामने रख करके जब मसाइल बयान करते हैं तो वो भी हिकमतों से काम लेते हैं और उन्हें भी पता होता है कि शरीयत के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस्म के तदरीज से काम लिया है, कब हालात किस तरह के पैदा हुए तो कैसी आयतें नाजिल हुई, और जब दूसरे हालात पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी आयतें नाजिल की और किस तरह से इंसानी नफ्सियात का, उनकी ज़रूरतों का और सूरत हाल का ख्याल रखा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम उनकी इक्तिदा करने की तरफ बढ़ते हैं। हर ज़माने में ऐसे हालात पेश आते रहेंगे जो हालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के साथ पेश आए, उनके मुमासिल, उनके मुशाबे हालात, उनके जैसे हालात इंसानी ज़िंदगी में, हम मुसलमानों की ज़िंदगी में आते रहेंगे। जब हम असबाब नुज़ूल को जानते हैं तो दरअसल हम उन वाक़यात की तरफ अपने आप को लेकर के जाते हैं। हमारे अंदर सहाबा किराम की पैरवी, उनके इक्तिदा का जज्बा पैदा होता है और जाहिर है कि ईमान वाली ज़िंदगी में इसकी बड़ी अहमियत है। अब आइए हम चंद मिसालों पे गौर करते हैं और उन चंद मिसालों से असबाब नुज़ूल को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस सिलसिले में एक मिसाल पे, पहली मिसाल पे गौर करते हैं। सल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवा बैतुल मक़दिस सित्तता अशरा औ सबअता अशरा शहरन व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु अन युवज्जहा इलल काबा फ़अंज़लल्लाहु क़द नरा तक़ल्लुब वज्हिका फ़िस समा
फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यामलून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ 16 या 17 महीने रुख करके नमाज अदा करते रहे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी, आप ये चाहते थे कि आपको खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिल जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस चाहत का ख्याल किया और अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि हम देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको उस किबला की जानिब मुतवज्जे करेंगे जिससे आप खुश हो जाएं। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहां कहीं हो अपना मुंह उसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कती इल्म है और अल्लाह ताला इन आमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये आयत नाजिल की, इस आयत के पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये चाहत कार फरमा थी। जब हमें ये बात मालूम होती है तो हमारे ईमान में इजाफा होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत शान का पता चलता है। दूसरी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं उस वक्त से वाकिफ़ हूँ जब लड़ाई करने वाली खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने अपने शौहर औस बिन सामित के सिलसिले में शिकवा किया कि उनके शौहर ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की मानिंद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो शिकायत कर रही थी और उनकी वो आवाज़ अल्लाह तबारक व ताला तक पहुँची और अल्लाह तबारक व ताला ने वो आयत नाजिल की, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये आयत नाजिल की, इस आयत के पीछे हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या है जो वो अपने शौहर से मुताल्लिक बतला रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि उनके शौहर ने उनसे ज़िहार किया था, यानी उनसे कहा था तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की मानिंद हो। यानी एक दूसरे जाविये से देखा जाए तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये आयत इस वाक़ये के तनाजुर में नाजिल फरमाई। अब जब हम गौर करते हैं तो समझ में आता है कि असबाब नुज़ूल किसे कहते हैं, असबाब नुज़ूल जानने के फ़वाइद क्या हैं और इस सिलसिले में जो बाज़ मिसालें दी गई हैं उनकी रोशनी में ये तय किया जा सकता है कि इनके फ़वाइद और इनकी हिकमतें कितनी हैं। लेकिन जो गौर करने की और तवज्जो देने की बात है वो ये है कि असबाब नुज़ूल के जानने का वाहिद रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इस सिलसिले में असर या हदीस बयान कर रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इल्म व हिकमत के चराग को रोशन रखे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।